members. Wish you all a very good afternoon. I hope that and all your family members are doing fine. We have gathered here on this occasion to have a webinar by three of our distinguished colleagues. And this is in wake of the pandemic that we are facing and the losses that we have had as a family in the past 1.5 months. We realize that significance of ensuring the uh, medical and financial well-being of ourselves, and more than that, the medical and financial well-being of our dependents, our wives, our children, and if we have our parents with us, we need to ensure that their well-being is taken care for. We all understand that as individuals, we carry financial and medical well-being of our dependents. Yet there are several manners, several approaches that are available through government organizations as well as through private institutions that offer different modes of insurances. And in person as well as in a public life, we all understand that there is an increasing significance of insurance for families, for individuals. So in order to get a better understanding of how CU Raj as a family or CU Raj as a group can get benefited by adapting to insurance system, and more specifically the group insurance system, we have got this wonderful upcoming webinar scheduled for three of our experts will be able to convey some of the important messages, and furthermore they will be able to address your questions and queries towards the later part of this webinar. So with these words, I request and I welcome our distinguished colleagues and guests, Sri Hari Singh Ji Parihar Ji, Dr. Hari Singh Parihar Ji, Dr. Jiten Kumar Ji, and Dr. Sheetal Prasad Mahendra Ji. Welcome, sir, and over to you for this webinar. Over to you, Jiten, sir. Please unmute yourself, sir. Okay, today's basically discussions, we have, as there are three members, so as it has three very important part that why it is required, now these days, and what are the conceptual parts or practicalities with the group insurance and how that may be exercised. So it's today's webinar has three parts. So first, Professor S.P. Mahan sir, so he'll continue, and then after him I will join. Mahan sir. बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आवाज आ रही है? आ रही है। सभी को नमस्कार। परम आदरणीय श्रीमान वीसी साहब, सभी डीन साहिबान, सभी विभागाध्यक्ष साहिबान और हमारी टीम को जो साथ साथ मोटिवेट करके लेकर चल रहे हैं, प्रोफेसर जादव जी और सभी विद्वान साथी। आज जो हम बात कर रहे हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है, एक पुरानी कहावत है कि जब आग लगे तो कुआं खोदते हैं। समझदार लोग पहले कुआं खोदे हुए होते हैं तो उस पानी को आग बुझाने में काम ले लेते हैं। आज जिस वेबिनार की हम बात कर रहे हैं या इसकी आवश्यकता को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने ये कुआं खोदने का प्रयास जब किया है, जब हमारे यहाँ कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नुकसान हो गया, थोड़ी बहुत क्षति हो गई, आग लग गई, तब हमने कुआं खोदने का प्रयास किया है। पर फिर भी बुद्धिमानी इसमें है कि कम से कम इस कुएं के पानी से आगे की पीढ़ी तो सलामत रहेगी, आगे की पीढ़ी तो हरी भरी रहे, तभी तो कुआं खोदे। मित्रों, जिंदगी में हमेशा हम जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, ये अलग बात है। ईश्वर हमें हर हाल में, हर
चीज की पूर्ति करने का प्रयास करता है, लेकिन ईश्वर भी कहता है कि कर्म तो अपन को खुद को ही करना पड़ेगा। यदि हम कर्म नहीं करेंगे, यदि हम में अपने आप को और अपने परिवार को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को सुरक्षित नहीं रखने की बात आएगी, तो किस तरह हम हमारे राष्ट्र ऋण को, हमारे गुरु ऋण को, हमारे पितृ ऋण को चुका पाएंगे। और अपनी पीढ़ी के साथ साथ आगामी पीढ़ी की सुरक्षा करना भी हमारा पितृ ऋण है, जो हमको चुकाना ही चाहिए। पितृ ऋण का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं हो जाता है कि हमने वंश वृद्धि कर दी। वंश वृद्धि के साथ साथ हमें उस पीढ़ी पर भी बात करनी चाहिए, उस पीढ़ी की सुरक्षा को भी लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वंश वृद्धि की बात करेंगे, तो फिर बात बेमानी रह जाएगी। इसलिए हमें लगातार हमारे सबके वेलफेयर का प्रयास करना चाहिए। इसी में बीमा क्या है वास्तव में? बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, और इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य के संभावित नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। भविष्य के संभावित नुकसान की, क्योंकि जब आज हम इस समय रह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के समय रह रहे हैं, जो आज का ही नहीं हजारों लाखों साल में आगे क्या हो सकता उसकी गणना करने पे लगा हुआ है लगातार। और विज्ञान हमारे सामने लगातार ये सब लाने के लगा हुआ है कि इतने समय बाद सूर्य नहीं रहेगा, इतने समय बाद धरती नहीं रहेगी या रहेगी, या क्या परिवर्तन हो जाएंगे। तो हमें तो कम से कम एक दो पीढ़ी का तो सोचना ही चाहिए। हम इतने आगे जाने की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन एक दो पीढ़ी का जरूर हमें सोचना चाहिए। सामूहिक बीमा में सामूहिक का मतलब है कि मित्रों का सामूहिक संगठन। कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी चलते हैं, एकला चलो रे, लेकिन एकला चलो में थक जाता है आदमी। कारवां साथ होती है तो कारवां की वजह से हिम्मत बढ़ती जाती है, और एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना के भाव से जब आदमी आगे बढ़ता है, जो ज्यादा मजबूत है वो कमजोर को हाथ देता है और आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसमें ताकत आ जाती है। मिर्जा गालिब की कुछ लाइनों से मैं अगर अपनी बात को मजबूती दूं, आप मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे। ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। ये अलग बात है मित्रों, कुछ दोस्तों को हमने खोने के बाद हम फिर उन्हीं बाकी दोस्तों के लिए और उन दोस्तों के साथ साथ उन परिवारों के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उन सब की सलामती, उन सब की सलामती, उनके आशीर्वाद मेरे लिए जरूरी है और मेरे आशीर्वाद उनके लिए जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बंद मुट्ठी क्यों आए थे और खुले मुट्ठी क्यों चले जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जब हम आए थे बंद मुट्ठी के साथ साथ, तो हमारे को बहुत सारी दुआएं बख्शी थी, हम बहुत सारी दुआएं लेकर के आए थे। और जब खाली हाथ जाते हैं मित्रों, तो सारी दुआओं की नेमत लुटा के जाते हैं। जानवर और इंसान में यही फर्क होता है, जानवर एक बार की हो सकता है खुद के लिए जीता हो, लेकिन इंसान अपनों के लिए जीता है, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए जीता है। इसीलिए तो समाज बनता है, इसीलिए तो सामाजिकरण होता है। और जब ये सब चीजें साथ चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें एकजुट होकर के लगातार काम करना चाहिए। कुछ प्रीमियम की बात मैं आगे करूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये मानते हैं हम कि जीवन में सिर्फ बीमा जो धन जमा करके आगे धन प्राप्त किया जाने का जरिया है, उसके अलावा भी जीवन में हमें तन और मन की प्रसन्नता का प्रीमियम भी जमा करना चाहिए, स्वास्थ्य का प्रीमियम भी जमा करना चाहिए, रिश्तों का प्रीमियम भी जमा करना चाहिए मित्रों, और अपने अड़ोस पड़ोस को प्रसन्न रखने का भी प्रीमियम जमा करना चाहिए। क्योंकि ये बाद में पता चलता है कि जब मैं चला गया तो मेरे बच्चों के पास कितने लोग थे जिन्होंने ये कहा आकर के कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर एक भी नहीं तो मान लीजिए हमने कोई प्रीमियम जमा नहीं किया, न अड़ोस पड़ोस का, न रिश्ते का। हमने किसके लिए काम किया? किसी के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमें हर हाल में हर तरीके का प्रीमियम अता करना चाहिए, हर तरह का प्रीमियम जमा करना चाहिए। ये हम ही नहीं,
हर वह मनुष्य जो भी थोड़ा सा विवेक रखता है, जो आगे पीछे का सोचता है, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर का हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, सब अपने अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि वेलफेयर स्टेट का काम है, गवर्नमेंट करेगी, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि गवर्नमेंट करे। नहीं, सभी लोग अपने अपने अंशदान से, कुछ तथ्य हमने जुटाए हैं जिससे हम ये बताएंगे कि अपने अपने अंशदान से लोगों ने सामूहिक बीमा, दुर्घटना बीमा, मेडिक्लेम और एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड का संचालन लगातार कर रहे हैं। ये उनकी अपनी उम्दा सोच है। सरकार उसे खाली मैनेज कर रही है, सरकार उसे सिर्फ व्यवस्थित कर रही है, बाकी वो खुद की जिज्ञासा थी उनकी, जो इस तरीके से अपने और सबके वेलफेयर के लिए काम आया, और वही आगे बढ़ करके आगे इस तरीके से आता है कि जो जीवन में हर हाल में हर व्यक्ति को हमारे बाद भी खुश करने की कोशिश करे। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम अति आत्मविश्वास में कुछ चीजें भूल जाते हैं या कुछ चीजों को गौर ही नहीं करना चाहते। कभी कुछ लोग कह देते हैं कि जो कुछ है ईश्वर के हाथ में, फिर की चिंता करनी। अरे ईश्वर के हाथ में बिल्कुल सही है, पर ईश्वर ने कर्म करने के लिए तो हमें कह रखा है, उसके अनुसार तो हमें काम करना ही करना है। और प्रगाढ़ आस्था और प्रगाढ़ विश्वास वो भी तो हमें नहीं है, तो वो भी करेगा, लेकिन उसके लिए जो चाहिए, हमारा जितना डिवोशन उसके प्रति चाहिए वो नहीं है। कभी कभी हम मुगालते में रह जाते हैं। हम तो गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत कैलकुलेटिव हैं कि मेरा इसी में फायदा हो सकता है, पड़ोस का इसमें नहीं होना चाहिए या उसका नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं मानता हूं आप में से बहुत से लोगों का इंश्योरेंस हो सकता है, मैं मानता हूं बहुत से लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित कर रखा होगा, लेकिन गांधी जी का एक जंतर जो कभी स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा होगा कि कभी भी कुछ मन में संशय आए तो अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच लेना, सारा संशय समाप्त हो जाएगा। और बिल्कुल सच्चाई है, यदि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत से लोगों ने अपने जीवन का पूरा व्यवस्थित कर रखा है, पूरा सुरक्षित कर रखा है, लेकिन यदि उसमें अंतिम पंक्ति में कोई अंतिम व्यक्ति भी कमजोर है और उसने भूल से या किसी वजह से भी नहीं करा, तो निश्चित रूप से हमारी कड़ी कमजोर है और हमारे परिवार की कहीं न कहीं कमजोर कड़ी टूट सकती है। इसलिए हमें कुछ व्यक्तिगत हित को छोड़ करके सामूहिक हित के लिए भी सोचना चाहिए। हमें कभी भी इस अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए कि हम सिर्फ हमारे लाभ हानि ही सोचे, हम पूरे परिवार की लाभ हानि के बारे में सोचे। यदि हमारा कोई प्रीमियम देने से हमें इतना लाभ नहीं होता जिसे दूसरे के प्रीमियम से फायदा हो, क्योंकि सामूहिक बीमे का फायदा ही यही है, क्योंकि उसमें जो बहुत नीचे के स्तर पर भी है उसको भी बहुत अधिक फायदा मिल जाता है, बड़ों के साथ साथ, या बड़ों का प्रीमियम है वो कम हो जाता है दूसरों के साथ साथ, इस तरह का बहुत अच्छा फायदा है। और हमें सदैव अपनी अजर अमरता के बारे में कतई हम सब जानते हैं बिल्कुल नहीं है, यह सत्य है, क्योंकि हम बिल्कुल नर के स्तर पर हैं राम की तरह, क्योंकि राम भी नारायण से नर के स्तर पर आकर ही रावण को जीतते हैं। उसी प्रकार हम भी नर के स्तर पर आकर के इन समस्याओं को जीत सकते हैं, अन्यथा इन समस्याओं से हम नहीं जीत सकते। बहुत स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में देखने पर पता चलता है कि बहुत कम प्रीमियम पर बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत ऐसे उनके प्लान हैं जो सबके लिए अनुकूल हो सकते हैं, सबके लिए स्लैब के अकॉर्डिंग अनुकूल हो सकते हैं। ऐसा हमें भी सोचना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के रूप में दूं कि राजस्थान सरकार में, मैं राजस्थान सरकार से आया हूं इसलिए मुझे पता है, और वहां पर अधिकतम प्रीमियम राशि 7,000 रुपए मासिक है जो आदमी अपनी तनख्वाह से कटवाता है। और मैं लगातार अभी भी उस पॉलिसी को जारी करे हुए हूं और अपनी कटौती भरता हूं। उसमें 800 रुपए, अगर 22,000 रुपए बेसिक है तो 800 रुपए, और 22,000 1 से 28,000 तक का बेसिक है तो सिर्फ 1,200 रुपए मासिक प्रीमियम देता है। और उसी प्रकार 2,200, 3,000
और 72,000 रुपए से ऊपर प्रीमियम बेसिक है तो 5,000 का प्रीमियम वह चुकाता है, और उसमें उनका इंश्योरेंस 40 लाख से 50 लाख रुपए सम इंश्योर तक आता है। ऐसा का ऐसा ही अगर हम आगे देखते हैं तो केंद्र सरकार भी इसी तरीके की प्लान के साथ साथ एम्प्लॉयर के फंड को मैनेज करती है। केंद्र सरकार में जहां कोई जमाने में जो पे लेवल 10 से ऊपर था उसमें 120 रुपए पे 1,20,000 रुपए का सम एश्योर्ड था, वो आज की तारीख में 5,000 रुपए उनका मंथली कटता है और उसमें 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है मित्रों। जहां पहले 60 रुपए पे 60,000 था, आज की तारीख में लेवल 6 से 9 में 2,500 रुपए पर 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, और इसी प्रकार 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। तो ये सरकार की योजनाएं हैं जिसमें खुद कर्मचारी की सहभागिता से हो रहा है, कहीं पर भी सरकार इस प्रीमियम को नहीं चुका रही है। इसी प्रकार बहुत सारे विश्वविद्यालयों से भी हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। जो विश्वविद्यालय 2004 से पूर्व के हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, महात्मा गांधी, अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जामिया और इग्नू से मेरी वहां बात हुई, जिसमें 2004 से पूर्व के होने की वजह से जो बाद में एम्प्लॉय लगे कहीं से छोड़ करके आए हैं, उनको पुरानी पेंशन और सामूहिक जीवन बीमा के विकल्प दिए गए, और जो 2009 के बाद में वहां पर लगे उन्हें नए नियम के आधार पर NPS और जीवन बीमा के कुछ यूनिवर्सिटियों ने अपने स्तर पर GIC और LIC से व्यवस्था करके उन लोगों को पॉलिसी जारी की, जिससे उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने उनके बारे में नहीं सोचा, और ये सब स्वयं के द्वारा प्रीमियम देकर के सुविधा प्राप्त की जा रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है और कुछ यूनिवर्सिटीज में MOU साइन हो गए, ऐसी स्थिति में है, पर सभी यूनिवर्सिटीज और पुराने संस्थान इस बारे में अनवरत सोच रहे हैं, जिस बारे में आज हम सोच रहे हैं। क्योंकि मित्रों, जिंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है, मगर दुर्घटना के बाद बीमा नहीं हो सकता है। जिंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है, मगर दुर्घटना के बाद बीमा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हर हाल में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। यही बात नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज में बहुत आगे है, जिन्होंने एम्प्लॉय वेलफेयर फंड बना रखे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो वेलफेयर फंड में इस समय लगभग 14 करोड़ रुपए हैं, और जिसके द्वारा इस समय कोरोना संकट में प्रभावितों की सहायता की जा रही है। अपुष्ट आंकड़ों से ये उसके संबंधित कॉलेजेस और बाकी सब लोगों से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेटा है, उसमें 100-150 हमारे साथी लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे। उन लोगों की इवन वहां पर संविदा पर जो लगे हुए हैं, उनकी भी इस वेलफेयर फंड की सहायता से मदद की जा रही है। क्यों? ये सब चीजें हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट पर हो चाहे परमानेंट हो। दुख तो सबका एक जैसा है, और जब दुख सबका एक जैसा है तो समाधान करने की कोशिश भी हमें ऐसी ही करनी चाहिए। राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास भी लगभग 4-5 करोड़ रुपए हैं, और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी मासिक रूप से 1,000 रुपए का अंशदान देता है वहां पर, और जिससे वहां जिस प्रकार की भी समस्या हो, किसी को लॉनिंग की या किसी को अन्य क्षेत्र में पैसे की आवश्यकता हो, तो उसकी पूर्ति उसके माध्यम से की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे वेलफेयर के काम हैं, जिन वेलफेयर के कामों को ये यूनिवर्सिटीज कर रही है। और आपको पता होगा कि सेना में तो इस तरह के फंड का प्रावधान शुरू से ही है, जहां हितकारिणी और दूसरे तरीके के सैनिक कल्याण बोर्ड लगातार काम करते रहते हैं। एक बात और, हमारे यहाँ CGHS है, इसके अलावा भी ये चीज मुझे इलाहाबाद और यहाँ पता चला कि वहां पर मेडिकल की सुविधा के लिए भी
1000 रुपए या उससे कम की कटौती कई जगह करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट और कोई स्टेट गवर्नमेंट भी आरपीएमएफ के नाम से फंड को काटती है, जो उनको बाद में मेडिकल के रूप में दिया जा सकता है। तो अगर हम लोग सोचें, क्योंकि हम सब कर सकते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और कुआं हम अब खोदना शुरू कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीद रखें, इस बात की आशा रखें कि पानी उसमें होगा, और हमारे प्रयासों से लबालब होगा पानी भी उसके अंदर। क्योंकि यदि अपन अब से भी करना शुरू करते हैं और विश्वविद्यालय में ज्यादा भी नहीं तो 150 रुपए मासिक हम काटना शुरू करते हैं हमारी फैकल्टी से, सब लोगों से, तो लगभग 250 आदमी जो टीचिंग नॉन टीचिंग है, उनका एक वर्ष का 4,50,000 रुपए के आसपास की राशि जुट जाएगी। और अगर ये इसी अनुपात में जुड़ता रहा तो निश्चित रूप से हमारे पास कहीं पर भी किसी की मदद करने के लिए हाथ पीछे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देनदार कोई और है, देते रहे दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करे जाते नीचे नैन। रहीमदास जी बहुत पहले कह गए, हमारे पास कुछ होगा तो हम निश्चित रूप से सब लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा हमेशा देंगे। इसके अलावा भी जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी कुछ प्रीमियम जमा कर देने चाहिए। कुछ प्रीमियम के जो, क्योंकि आध्यात्मिक प्रीमियम है, कुछ सामाजिक प्रीमियम है, तो कुछ नगद के प्रीमियम है। मित्रों, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भी एक तरीके का प्रीमियम है कि हम हमारे प्रत्येक निवेश, इवन जमीन के या एसआईपी के या इंश्योरेंस के सब कागजों को एक फाइल में करके रखें, हमारे आदेशों को एक फाइल में करके रखें। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि परिवार, हमारे जाने के बाद परिवार को यह पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या लाभ परिवार को मिलना चाहिए था, ये उसे पता ही नहीं चल पाता है, और बहुत सारा पैसा इधर से उधर जाता है। और जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी काया, इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जब शरीर मजबूत होगा। इसलिए 1 घंटा रोज अपने शरीर के लिए जरूर दीजिए, ताकि हम हर हाल में स्वस्थ रह सकें। क्योंकि मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि हमारे गाढ़े समय के लिए कुछ बचत अवश्य करनी चाहिए, कुछ पुण्य के लिए, परलोक के लिए करना चाहिए, कुछ यहाँ के लिए करना चाहिए, ताकि सदैव मैं ये कह सकूं कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, कुछ करूं ऐसा कि बाद भी मेरे अपने मुस्कुराते रहें। तो मित्रों, आप सभी से दरखास्त है, हम सब मिलकर के कुछ ऐसा रास्ता बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं जो आगे के लोगों को नजीर के रूप में पेश की जा सके।